آپ سے کہتے ہیں آپ کے پاس ایسا کون سا کمال ہے جو کہتے ہیں ہمارے حضور ہمارے مثل ہیں؟ میں کہتا ہوں ہمارے حضور کی شان اور عظمت یہ ہے کہ حضور جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی اور کوچے مہک جایا کرتے تھے. آپ کے مبارک بدن سے جو پسینہ ٹپکتا تھا وہ موتیوں کے مثل تھا. اور حضرت انس فرماتے ہیں میں نے وہ خوشبو کستوری اور عطر میں وہ خوشبو نہیں دیکھی جو حضور کے مبارک بدن سے ہلکی ہلکی خوشبو کی پھوائیں پھوٹا کرتی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کو جب پسینہ آتا تھا آپ کے چہرے جب پسینہ ٹپکتا تھا تو موتیوں کے مثل ٹپکتا تھا اور اس سے اتنی بہترین خوشبو آتی تھی جیسا کہ کستوری اور عطر میں خوشبو آتی ہے. ایسی بابرکت حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, آنے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے, خوشبو کا کوئی انتظام نہیں ہے, آپ تھوڑی سی خوشبو دے دیجئے. سرکار نے کہا آئیے آپ دوسرے دن آئیے, ایک شیشی لے کر کے آئیے, آپ کو خوشبو مل جائے گی. جب دوسرے دن وہ شخص آیا حضور کی بارگاہ میں تو آپ نے اپنے مبارک بازوؤں کو پسینہ اس کے اندر ٹپکا کے ڈال دیا, وہ شیشی لبریز کر دی. بتاتے ہیں روایتوں کے اندر آتا ہے جب اس دلہن نے خوشبو لگائی اللہ اکبر تو گلی کوچے مہک گئے, محلے مہک گئے. اور یہ ہوا کہ ایک زمانہ یہ آیا کہ وہ گھر خوشبوؤں کا گھر کہلانے لگا. جس نبی کے پسینے میں اتنی خوشبو ہو تو اس نبی کا عالم کیا ہوگا. ہم تو فخر کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں ایسا محبوب, ایسا خوبصورت, حسین و جمیل, بابرکت, جس کے پسینے میں بھی خوشبو ہو, ایسا نبی عطا فرمایا. لیکن کچھ لوگ ہیں جو آج بھی ہمارے نبی کی شان میں اس طرح کی خرافات کرتے ہیں کہ اپنے مثل بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بڑی پوائنٹ کی بات کہتے ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھو گے, روزہ رکھو گے اور عبادت کرو گے تو آپ نبی کا مرتبہ پا سکتے ہو. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تو نبی بنا کر کے بھیجتا ہے اپنی رحمت کاملہ سے. کوئی رات و دن عبادت کرے, دن بھر روزے رکھے, پوری رات ماتھا ٹیک کر زمین پر اللہ اللہ کہتا رہے, تب بھی اسے وہ مقام و مرتبہ نہیں مل سکتا جو اللہ نے اپنے نبی کو بنا کر کے بھیجا ہوتا. یہ کوئی نبوت کا مسئلہ ایسا تھوڑی ہے کہ کمالات سے, عبادت سے, ریاضت سے مل جائے. یہ تو اللہ اپنی رحمت کاملہ سے بنا کر کے بھیجتا ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب کو حسن و جمال ہی نہیں عطا فرمایا بلکہ آپ کے اندر ہر خوبی تھی, ہر خوبی آپ کو اللہ نے عطا فرمائی. ابو جہل حضور اکثر فرمایا کرتے تھے ہر امت میں ایک فرعون ہے, میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. ساری زندگی حضور کو تکلیفیں دیتا رہا, ساری زندگی حضور کو برا بھلا کہتا رہا. ابو جہل بہت بڑا عالم اپنے وقت کا تھا, بادشاہ تھا, قوم کا رہبر تھا, رہنما تھا. ایسا نہیں بالکل جاہل تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا. ایسا لگتا نا ابو جہل مطلب بالکل جاہل, پڑھا لکھا نہ ہو, ایسا کچھ نہیں تھا. بلکہ وہ سمجھدار, پڑھا لکھا تھا, جان بوجھ کے ایسا کرتا تھا. حضور کے کمالات اور حسن کو سب کچھ جانتا تھا, جانتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں. لیکن ہٹ درمی جیسے کہ آج کے لوگ جو اپنے آپ کو ملا کہلاتے ہیں, دین کے ٹھیکیدار کہلاتے ہیں, جانتے ہیں حضور کے کمالات لیکن پھر بھی جو عیب لگالتے ہیں, کمیاں نکالتے ہیں. کیسا وہ انسان ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کی برائی کرتا ہے. اب بڑا افسوس کی بات ہے. کیسا وہ انسان ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتا, اگر کوئی کافر آپ سے سوال کرے تم ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس کے خیال سے نماز خراب ہو جائے. آج تک کوئی بھی انسان بتائے, ہماری مسجد کے جو کمیٹی کے لوگ ہیں یا جو اور عام لوگ ہیں, ورکر ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کہیں نہ کہیں کبھی نہ کہیں ان کا تصور ضرور پہنچ جاتا ہے کام کاج کی طرف. یا کبھی کسی نے کہہ دیا سامان لانے کے لیے, مارکیٹ جانے کے لیے, یا بیوی نے کچھ مطالبہ کر دیا, تنخواہ 10,000 کی اس نے مطالبہ کر دیا اس سے اوپر کا, تو اس کا ذہن کبھی نہ کبھی تو نماز کے اندر پہنچ ہی جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا تمہاری اس عقیدے سے کہ ایسی کوئی نماز ہی نہیں جو نماز کسی نہ کسی خیال میں ہونا, تو اس کا مطلب ساری نمازیں برباد. ایک امتی کے اندر ایک دماغ میں امتی خیال آ گیا تو نماز برباد تمہارے نزدیک. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ایک امتی کے خیال میں ایک امتی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں خراب ہوتی, تو ایک امتی کے خیال میں جب نبی کا خیال آ جائے گا تو نماز کیسے خراب ہوگی. ہم تو ہر دن نماز پڑھتے ہیں, کوئی نہ کوئی خیال آ جاتا ہے, تو ہماری نماز خراب نہیں ہوتی. تم کیسے نمازی ہو یار, تمہاری نبی
जाती है, तुम कैसे नमाजी हो, आप कैसे नमाजी हो। कि आपका अगर तसव्वुर नबी की तरफ पहुंच जाए। और मैं कहता हूं अगर कोई इंसान अरबी जुबान में अत्तहियात अरबी जुबान में है और जब अत्तहियात पढ़ेगा थोड़ा सा भी दिमाग रखता होगा, जब पढ़ेगा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि। अब बताओ जब अत्तहियात में नबी का जिक्र आए तो उसका ख्याल कहां जाएगा? बाजारों में जाएगा, मार्केटों में जाएगा? अरे जब नबी का जिक्र होगा तो नबी का ही तो ख्याल आएगा उसके दिमाग में। तो हम सुन्नियों का अकीदा ये है जिस नमाज में नबी का ख्याल आ गया वो नमाज मकबूल, वो नमाज कामिल कबूल। जो नबी के ख्याल में तसव्वुर में नमाज पढ़ी जाए वो नमाज रब की बारगाह में कबूल होगी। हमारा अकीदा ये है और आपका अकीदा अपने पास रखो। अबू जहल सबसे बड़ा नबी का दुश्मन। हमारे हुजूर सिर्फ चेहरे के एतबार से हसीन और जमील नहीं, आपका खुल्क आपकी आदत भी बड़ा करीम थी। सारी जिंदगी हुजूर को तकलीफें देने वाला वो शख्स एक दिन अपने साथियों से कहता है क्यों ना हो हुजूर के साथ आज हंसी और ठिट्टा किया जाए। मशवरा दिया उसने, कहा जिस रास्ते से हुजूर गुजरते हैं, जिस रास्ते से आपका गुजर होता है उस रास्ते में कुआं खोदा जाए। अपने साथियों को उसने हुक्म दिया, कुआं खोदा गया, खूब गहरा कुआं, और उसके ऊपर लकड़ी डाल के कुछ घास फूस डाल दी ताकि पता ना चले यहां कुआं खुदा हुआ है। अल्लाह अकबर। अब जरा इस नुक्ते को देखिए, जब हुजूर का गुजर हुआ तो अल्लाह ने अपने हबीब को इस बात की इत्तला दी, ए महबूब इस रास्ते से ना गुजरना, आपके दुश्मन अबू जहल ने यहां कुआं खुदवा दिया, आप गिर जाएंगे, आपको तकलीफ होगी। अल्लाह ने अपने हबीब को, एक रिवायत में यह है कि अल्लाह के महबूब उसी रास्ते से गुजर रहे थे कि अल्लाह ने रास्ता समेट दिया, कुआं समेट दिया। हुजूर तो पार हो गए। उसका मंसूबा जब उसको इल्म हुआ कि हुजूर निकल गए और कुएं में नहीं गिरे, उसका मंसूबा धरा का धरा रह गया। और जब वो देखने आया कि कैसे पार हो गए, कुआं तो बहुत बड़ा बनाया था, तो धोखे उसमें खुद गिर गया। अल्लाह अकबर। खुद उसी में हुजूर के लिए उसने गड्ढा खुदवाया था, कुआं खुदवाया था। अब जब चिल्लाने लगा, अपने साथियों को बुलाने लगा कि मुझे निकालो उस कुएं से, जब उसके साथी दौड़े रस्सी लेकर उसमें डाला और निकालने की कोशिश करी तो कुआं उसके अंदर धंसता चला जाता, यानी वो कुएं के अंदर धंसता चला जाता। अब चीखो पुकार मचा रहा है और कह रहा है जा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को बुलाओ, उनकी सिवा मुझे कोई नहीं निकाल सकता। हालांकि हुजूर का दुश्मन था। जो इंसान करता है वो ये तो तसव्वुर करेगा यार मैं उसका दुश्मन हूं, वो मेरा दुश्मन है, अगर मैं बुलाऊंगा तो वो आएगा, नहीं आएगा। लेकिन हुजूर कितने करीम हैं, कितने रहीम हैं। अल्लाह ने वो कमालात आपको अता फरमाए। जब उनका दोस्त, उनका साथी, अबू जहल का साथी हुजूर को बुलाने गया और पूरा बात बयान की तो हुजूर खुद ब खुद तशरीफ लाए और कहा अबू जहल अपना हाथ दे। हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से निकाला और कहा इस्लाम कबूल कर ले, अभी वक्त है। तो कहा हुजूर मुझे निकालिए तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा। जब हुजूर ने निकाला उसके बाद वो मुनकिर हो गया और जादूगर कह के अपनी बात को टाल दिया। कैसे करीम मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दुश्मनों पर भी रहम फरमाते हैं, करम फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। आज उसी रसूल की शान में लोग गुस्ताखी करते हैं। अल्लाह। मदीना मुनव्वरा के अंदर चंद काफिर आए और सफर के हारे थके थे और हुजूर की बारगाह में आने के बाद अर्ज गुजार होते या रसूलल्लाह मैं मुसाफिर हूं, आपके यहाँ पनाह चाहता हूं, एक रात की पनाह चाहता हूं, मेरे लेटने का इंतजाम कर दिया जाए, मेरे खाने पीने का इंतजाम कर दिया जाए। हुजूर ने कहा ठीक है। अपने साहबा से कहा इनको आपस में तकसीम कर लो। साहबा लिए गए, एक शख्स बचा, हुजूर को अपने साथ लेकर के गए मकान पर और हुजूर ने उसके खाने का इंतजाम किया। अल्लाह अकबर। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दूध का इंतजाम किया, उसको एक बकरी का दूध दिया, उसने पिया। भूख था, भूख से निढाल था, चेहरा बिल्टा हुआ था, तो उसने फिर एक बकरी का दिया, दो बकरी का दी, यहां तक कि 7 बकरियों का दूध पी गया। वो शख्स जब शाम को खाना तैयार हुआ रात के वक्त तो वो खाना भी उसको दिया गया, यहां तक कि पूरे घर का खाना खा गया। अब जाहिर सी बात, जरूरत से ज्यादा इंसान खाना खा लेगा तो उसका पेट तो खराब हो गई। रात में जब वो सोया तो उसका पेट खराब हुआ और उसको बौलो बरास की हाजत हुई तो उसने बिस्तर पर ही कर दिया। अल्लाह अकबर। अब देखिए हुजूर के कमालात, हुजूर की शान और अजमत देखिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अपने
उम्मतियों पर अल्लाह के रसूल तो सबके लिए रहमत बन के आए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पूरे जहान के लिए रहमत बन के आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो जब रात में परेशान हुआ, हुजूर उसके परेशानी को समझ गए, आप उसके इरादे यानी उसके इरादे को आपके जहन में आ गया कि हमारा आने वाला मेहमान परेशान है, इरादे कल्ब से आगाह हो गए हुजूर, सुभान अल्लाह, उसके इरादे कल्ब से हुजूर पर आगाह हो गए। हुजूर ने रात में यानी सुबह नमूदार होने वाली थी तो कुंडी खोल दी, जब उसने देखा कि जंजीर खुली, खामोशी के साथ वो निकल गया। जब काफी दूर उसने रास्ता तय कर लिया, उसके बाद उसे ध्यान आया, ख्याल आया मेरा एक थैला, उसमें तलवार, उसमें कुछ सामान रह गया, तो वापस दोबारा पलट के आया तो क्या देखते हैं कि हुजूर उसी बिस्तर को अपने मुबारक हाथों से धो रहे हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर उस पर बरहम नहीं हुए, गुस्सा नहीं हुए। सरकार ने कहा तुम्हारा थैला ये है जो तुम सामान भूल गए। ये अदा देखकर वो शख्स हुजूर के कदमों में गिर जाता है और इस्लाम कबूल कर लेता है। अल्लाह, ये हुजूर की शान है। आज तुम हुजूर की बारगाह में आइब निकाल रहे हो। अल्लाह अकबर। हुजूर की बात तो बहुत बड़ी दूर है, मेरे सरकार की शान तो बहुत दूर है। और खाजाओं के खाजा, राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद अता रसूल फरजंदे बतूल, बागे नबुव्वत का शगुफ्ता फूल, सरताबा कदम आले रसूल, वाली हिंदुस्तान सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी संजरी के जमाने में एक ऐसा शख्स था जो आलिमों से नफरत करता था, उलमाओं का चेहरा देख के अपना चेहरा फेर लेता था। उस वक्त अल्लाह ने उसके ऊपर अजाब नहीं नाजिल फरमाया। जब वो मरा और उसका कफन दफन हुआ, जब कब्रिस्तान में ले जाया गया, जब कब्र में रखा गया, उस वक्त अल्लाह ने उसको लोगों को दिखाया, उसके ऊपर अजाब मुसल्लत किया। मुसलमानों के मजहब के मुताबिक उसका रुख जो है, उसका चेहरा किबला की तरफ किया तो जैसे करते थे किबला से चेहरा फिर जाता था, जैसे करते थे चेहरे से उसका चेहरा किबला से फिर जाता था। लाख कोशिशें की लेकिन चेहरा उसका किबला की जान नहीं हुआ। अब एक बुजुर्ग आए, उन्होंने देखा, कहा इसका चेहरा मत करो, इसलिए कि आलिमों को गुस्ताख है, इसका चेहरा कभी किबले की तरफ नहीं हो सकता। जो आलिमा को गुस्ताख हो, जो नबी के जानशीन उनका गुस्ताख, उनका चेहरा जो है किबला की तरफ नहीं रहता। जो नबी का गुस्ताख होगा उसका चेहरा कहां होगा? उसका चेहरा, उसको तो बॉडी मुंतकिल कर दी जाएगी। पिछले जुमे को मैंने बताया था आपको, जो जिससे मोहब्बत करता है दुनिया में तो नहीं उसे मंजर दिखाता, लेकिन मरने के बाद उनके लाशों को, उनके जिस्मों को मुंतकिल कर देता है। पिछले जुमे को मैंने आपको बताया था। वो शख्स जिन्होंने ये ख्वाब देखा था, मुल्ला सिराजुद्दीन और 4 लोग सारी जिंदगी आंसू बहाते रहे, और वो मंजर कब्र का उनकी निगाहों के सामने रहता था कि 3 लोगों की लाशें अपने हाथों से देखा कि मुंतकिल थी, और आलम ख्वाब में उस बच्ची ने पूरा वाकया बयान किया कि अल्लाह ने वो मंजर हमें मेरे साथ किया कि जो जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसके ही साथ उसको मुंतकिल कर देता है। वो लड़की थी, ईसाई लड़की थी, ईसाई से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई, सरकार की मोहब्बत पैदा हो गई, इस्लाम कबूल की। इस्लाम लाने के बाद हमेशा उसकी ये तमन्ना थी, जुस्तजू थी, एक मर्तबा हुजूर का दीदार हो जाए, गुंबद खजरा का दीदार हो जाए, लेकिन ना हो सका जीते जी। लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ तो अल्लाह ने उसकी वो मुराद पूरी की। वो क्या? दफन तो हुई हिंदुस्तान में, लेकिन जब उसकी कब्र को खोला गया तो वो उस कब्र में नहीं थी, बल्कि वो थी जन्नतुल बकी में। तो लोग परेशान थे जिन्होंने ये कब्र खोली। बाद में आलिम ख्वाब में उस बच्ची ने खुद बताया, अल्लाह ने आज जिस दिन मेरा इंतकाल हुआ था 3 लाशों को मुंतकिल किया। कहा वो कैसे? कि वो ऐसे में हुजूर से सच्ची मोहब्बत करती थी, ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती थी, लेकिन जब इस्लाम कबूल किया हुजूर से सच्ची मोहब्बत हो गई। हुजूर की दीदार के लिए, गुंबद खजरा के दीदार के लिए हमेशा तड़पती थी। जीती जी वो अमल तो ना हो पाया, लेकिन मरने के बाद अल्लाह ने मेरी मुराद को पूरी किया, जन्नतुल बकी में मुझे भेज दिया। और जो जन्नतुल बकी का एक शख्स था, मदीने का रहने वाला था, लेकिन मजहबे ईसाई से ताल्लुक रखता था, अल्लाह अकबर, हिंदुस्तान से ताल्लुक रखता था, अल्लाह ने उसकी लाश को यहां मुंतकिल कर दिया। एक और लाश थी जो बाराबंकी का मिर्जा था, वो यहूदियों से मोहब्बत करता था, अल्लाह ने उसकी लाश को वहां मुंतकिल कर दिया। तो पता चला जिससे जो मोहब्बत करेगा, कल क़यामत के दिन तो बहुत दूर की बात है, कब्र में ही उसका चेहरा मुंतकिल कर दिया जाएगा, उसका जिस्म मुंतकिल कर दिया जाएगा।
تو اس لیے حضور سے سچی محبت کرو، حضور کی محبت میں جینا اور مرنا سیکھو، اپنے بچوں کو درود پاک سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، اور اپنے بچوں کو حضور کا عاشق بناؤ۔ اگر حضور کا عاشق بن گئے تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، اور اگر حضور کی شان میں گستاخی والا بنا تو یہاں بھی ناکام وہاں بھی ناکام۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالی ہمارے بیان کرنے میں کوئی خطا خامی ہو گئی اللہ معاف